Hello dear students, today Maths 2, chapter number 2, Sequences and Series, Miscellaneous Exercise 2. See question number 13th. Find summation r equal to 1 to n, 1 cube plus 2 cube plus 3 cube plus and so on plus r cube entire upon square of r plus 1. See the solution for this question. Since summation r equal to 1 to n, cube of 1 plus cube of 2 plus cube of 3 plus and so on plus cube of r entire upon square of r plus 1. So first we discuss about numerator here. Since 1 cube plus 2 cube plus 3 cube plus and so on plus r cube is equal to summation k equal to 1 to r k cube, because if we put r equal to 1, if we put k equal to 1 here, so we get here 1 cube, k equal to 2, so plus 2 cube, k equal to 3 plus 3 cube, k equal to r plus r cube, which is last term of the given sequence. And you can say this is the sum of cube of first r natural numbers. This is the sum of cube of first r natural numbers. And sum of cube of first r natural numbers can be written in the summation form k equal to 1 to r k cube, and its formula is r square into square of r plus 1 upon 4. This is the formula for summation summation k cube. So here summation k equal to 1 to r k cube becomes r square into square of r plus 1 upon 4. This is the formula. Now we can substitute this value instead of 1 cube plus 2 cube plus 3 cube plus and so on plus r cube. So dear student, easily you can understand here, this is the sum of first r, sum of cube of first r natural numbers, and it can be expressed in terms of sigma summation k equal to 1 to r k cube, and its formula is r square into r plus 1 square upon 4. Now it is equal to, directly you should come here from this step to this step. This is the explanation for numerator only. So it is equal to summation r equal to 1 to n. Now instead of this sequence we write r square into r plus 1 whole square upon 4 entire upon r plus 1 whole square as it is here, which is given already in the question. Now you can say here r plus 1 whole square upon r plus 1 whole square will be cancelled to each other. Therefore remaining term only here r square by 4. What is the remaining? R square by 4. So in the next step you should write here 1 by 4 constant out of summation. Here 1 by 4 into summation r equal to 1 to n r square. And you know very well, summation r equal to 1 to n r square means sum of square of first n natural numbers, because here limit is r equal to 1 to n, or you can say range or value of summation r equal to 1 to n r square here becomes n into n plus 1 into 2n plus 1 upon 6. So this step can be written as 1 by 4 multiplied by n into n plus 1 into 2n plus 1 upon 6. Now here 1 by 4 into 1 by 6, that is 1 upon 24. So we should write in the denominator 24 because of 4 into 6. In the numerator same three terms, n into n plus 1 into 2n plus 1. So final answer of question number 13th is n into n plus 1 into 2n plus 1 upon 24. जैसा कि मैंने पहले भी बताया, अगर किसी भी स्टूडेंट को फार्मूलाज नहीं मालूम है तो इसी चैनल के डिस्क्रिप्शन में एंड में जाकर के देखिए,
वहाँ पर मैंने एक लिंक प्रोवाइड कर दिया है और उस लिंक पर जैसे ही क्लिक करोगे यू विल गेट फार्मूला लिस्ट। इसमें जितने भी फार्मूले यूज हो रहे हैं, समेशन, मिसलेनियस एक्सरसाइज एंड एक्सरसाइजेस, तो सभी फार्मूले एक ही प्लेस पर, एक ही लिस्ट में मिल जाएंगे। तो कोई भी फार्मूला सर्च करने की जरूरत नहीं है, ढूंढने की जरूरत नहीं है, उसको बाहर करने की भी जरूरत नहीं है। जस्ट रिवाइज थ्राइस और 4 टाइम्स, फार्मूला अपने आप ही बार्ट हो जाएगा, स्टोर हो जाएगा मेमोरी में, और इसके साथ ही क्वेश्चन को सॉल्व कर सकते हो। और वैसे भी ये सब क्वेश्चन सॉल्व करते करते भी फार्मूले बार्ट हो जाएंगे। इतने क्वेश्चंस मैंने यहाँ पर अपलोड कर दिए हैं और अभी कमिंग वीडियोस में अपलोड होते रहेंगे। तो ऐसा है कि फार्मूला जितना भी यहाँ पर लिख लिख के प्रैक्टिस करोगे उतने अच्छे से बार्ट हो जाएगा। तो चलिए आगे 14th क्वेश्चन की तरफ चलते हैं, देखते हैं कि उस क्वेश्चन में हमें क्या फाइंड करना है और कैसे आएगा। नाउ सी क्वेश्चन नंबर 14th। फाइंड 2 into 6 plus 4 into 9 plus 6 into 12 plus and so on up to n terms। मीन्स हमें यहाँ पर एक सीक्वेंस दिया है जो कि क्लियरली देख रहे हो कि 2 into 6 plus 4 into 9 plus 6 into 12 plus up to n terms। तो सबसे पहले तो मैं यहाँ पर एक्सप्लेन कर दूं स्टूडेंट को कि जो यहाँ पर एक सीक्वेंस है, इट इज द सम ऑफ द प्रोडक्ट ऑफ टू नंबर्स। और वो जो नंबर्स है यहाँ पर हमें इनको भूल से भी कभी मल्टीप्लाई नहीं करना है। स्टूडेंट कभी कभी सोचते हैं कि चलो हम इनको मल्टीप्लाई कर लेते हैं। तो अगर मल्टीप्लाई करोगे तो यहाँ पर क्या मिलेगा 12, और यहाँ पर आता है 36, फिर यहाँ पर आता है 72। तो इस तरह से हम लोग देखते हैं कि ये 12, 36, 72 प्लस एंड सो ऑन अप टू n टर्म्स। तो इसका अगर हमें सम फाइंड करना है तो ये कभी कभी मल्टीप्लाई करने के बाद किसी सीक्वेंस में कन्वर्ट भी हो सकता है, और कभी कभी मल्टीप्लाई करने के बाद हमें सीक्वेंस में नहीं मिलेगा। ये भी दोनों पॉसिबिलिटीज हैं। तो हमें यहाँ मल्टीप्लाई करें या जैसा मैंने यहाँ पर प्रोसेस प्रोवाइड किया है वैसा सॉल्व करो। तो जहां तक पॉसिबल हो इसको मल्टीप्लाई ना करें। जैसे यहाँ पर है 12, देन 36, देन यहाँ पर आता है 72। तो अगर हम लोग यहाँ पर 36 अपॉन 12 करते हैं तो हमें मिलता है 3, और जैसे ही 72 अपॉन 36 करते हैं तो आता है 2। मीन्स अगर हम उसको कंसिडर करते हैं कि कोई सीक्वेंस फॉर्म होता है, कंसिडर करो हम जीपी के लिए चेक करें, ज्योमेट्रिक प्रोग्रेशन के लिए, तो यहाँ पर हमें कॉमन रेशियो क्या मिला 3 और यहाँ पर हमें मिलता है 2। तो दे आर डिफरेंट, दे आर नॉट इक्वल, तो इट इज नॉट इन जीपी। और एपी की तरफ अगर हम लोग चलते हैं तो 36 माइनस यहाँ पर हम लोग करेंगे 12 तो हमें मिलेगा 24, और 72 माइनस 36 करोगे तो 36। तो कॉमन डिफरेंस भी इक्वल नहीं है। तो नीदर इन एपी नॉर इन जीपी। तो एचपी का तो कोई मतलब ही नहीं, कोई मीनिंग ही नहीं बोल करके, क्योंकि अगर एपी नहीं है तो एचपी भी नहीं होगा, और एचपी नहीं है तो एपी भी नहीं होगा। तो इस क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए हमने जो यहाँ पर मेथड प्रोवाइड किया है, तो उसी मेथड में जा करके इजीली सॉल्व कर सकते हो। तो आइए अब इसका सॉल्यूशन देखते हैं। सबसे पहले तो हमें यहाँ पर गिवन सीक्वेंस नोट करना है सॉल्यूशन में। गिवन सीक्वेंस 2 into 6 plus 4 into 9 plus 6 into 12 plus up to n टर्म्स। तो यहाँ पर ये हमारे पास n टर्म्स का एक सीक्वेंस है। तो ये सीक्वेंस हमने चेक कर लिया, ये ना तो एपी है, ना जीपी है, ना एचपी है, और इनको हमने मल्टीप्लाई भी करके चेक कर लिया, डिवाइड करके कॉमन रेशियो भी निकाला, और सब्ट्रैक्ट करके कॉमन डिफरेंस भी फाइंड किया, जो कि कुछ भी यहाँ पर सेटिस्फाई नहीं हो रहा है। तो आइए अब इनके एक एक टर्म को लेकर के सॉल्व करते हैं। तो देखो, द फर्स्ट नंबर इन ईच प्रोडक्ट इज, फर्स्ट नंबर इन ईच प्रोडक्ट क्या आता है 2, 4, 6 एंड सो ऑन। ये है फर्स्ट नंबर। तो हम सबसे पहले उसी नंबर को यहाँ नोट करते हैं कि सिंस 2, 4, 6 एंड सो ऑन अप टू n टर्म्स यहाँ लिख सकते हो आर इन एन एपी। तो ये हमारे पास एक सीक्वेंस है। अब इसको हम लोग चेक करते हैं। तो चेक करने के लिए हमने यहाँ पर रफली चेक कर लिया कि 4 माइनस 2 2, 6 माइनस 4 2, तो ये 2 2 2 2 आता ही रहेगा। मीन्स इसमें जो कॉमन डिफरेंस है वो इक्वल है। अगर कॉमन डिफरेंसेज आर इक्वल, कांस्टेंट है, फिक्स्ड है, तो ये क्या फॉर्म होगा एपी। तो इसके लिए मैंने यहाँ पर डायरेक्टली लिख दिया 2, 4, 6 एंड सो ऑन आर इन एन
AP, दैट इज अरिथमेटिक प्रोग्रेशन। तो फर्स्ट नंबर देखो 2, 4, 6, अब यहाँ पर आएगा 8, फिर आगे आएगा 10 एंड सो ऑन। तो इस तरह से ये AP का फॉर्मेशन हो गया। तो AP फॉर्मेशन होने के बाद हियर फर्स्ट टर्म ऑफ AP A इक्वल टू 2 एंड कॉमन डिफरेंस D इज 4 माइनस 2 इक्वल टू 2। तो हमें ये ध्यान देना है कि यहाँ पर अप टू n टर्म्स है किसके लिए, सम के लिए। अभी हम यहाँ पर फाइंड करेंगे rth टर्म। जैसा ही जितने भी सीक्वेंस रहेंगे इसमें 1, 2, 3, हम लोग उसको क्या करेंगे, पहले rth टर्म फाइंड करना है। तो इसका rth टर्म फाइंड करने के लिए वही tn का ही फॉर्मूला अप्लाई करना है, बाकी कुछ नहीं। सिंस tr इक्वल टू a प्लस आर माइनस वन इंटू डी, ये हमने rth टर्म यहाँ पर फाइंड कर लिया। ठीक है, तो ये R का रिलेशन GP के कॉमन रेशियो से नहीं है, वो मैं क्लियर कर देता हूं कि अगर हम ऐसा सोचें कि यहाँ पर R लिखा है और D भी लिखा है एक ही फॉर्मूले में, तो हियर दिस R इज नॉट रिलेटेड टू द कॉमन रेशियो ऑफ GP। ये एक rth टर्म ऐसे ही। और अगर किसी को कोई कंफ्यूजन है तो यहाँ पर TM ले सकते हो, TK ले सकते हो, kth टर्म, mth टर्म, ऐसा n को छोड़कर कोई भी नंबर, कोई भी लेटर, सॉरी नॉट नंबर, कोई भी अल्फाबेट यूज कर सकते हो। तो यहां पर हो गया टी आर इक्वल टू ए प्लस आर माइनस वन इंटू डी। अब हम यहाँ वैल्यू सब्स्टिट्यूट कर देते हैं किसकी, ए एंड डी। तो इट इज इक्वल टू 2 प्लस आर माइनस वन इंटू 2, और ये ब्रैकेट को ओपन किया तो 2r माइनस 2 हो गया। तो ये टोटल हो गया 2 प्लस 2r माइनस 2। तो 2 गेट कैंसल्ड, वी गेट ओनली 2r। मीन्स rth टर्म ऑफ द फर्स्ट सीक्वेंस इज 2r। चलो इनको ऐसा सेफ रखते हैं। अब इसके बाद आगे चलते हैं और देखते हैं कि इसमें जो सेकंड प्रोडक्ट दिया है, तो सेकंड प्रोडक्ट ऑफ सेकंड नंबर ऑफ ईच प्रोडक्ट, तो सेकंड नंबर में यहाँ पर है 6 और 9, फिर यहाँ पर है 12 एंड सो ऑन। तो इस तरह से हम लोग इसको भी नोट करेंगे कि द सेकंड नंबर इन ईच प्रोडक्ट इज, देखो यहाँ पर है द सेकंड नंबर इन ईच प्रोडक्ट इज। अब ये सेकंड नंबर क्या है, 6, 9, 12 एंड सो ऑन आर इन एन AP, मीन्स they are also in arithmetic progression। तो इनको भी सॉल्व करने के लिए हमें सबसे पहले चेक करना है कि व्हाट इज द फर्स्ट टर्म ऑफ दिस AP। हियर यू कैन चेक क्लियरली, फर्स्ट टर्म ऑफ दिस AP is 6, so we should write here A equal to 6 and D for common difference, D equal to 9 minus 6, क्योंकि फॉर्मूला है T2 minus T1 का, तो 9 minus 6 becomes 3। तो यहाँ पर फर्स्ट टर्म A इक्वल टू 6 किसके लिए, सेकेंड सीक्वेंस के लिए, और D इक्वल टू 3। तो यहाँ भी हमें TR ही फाइंड करना है। अगर स्टूडेंट को यहाँ TR दोनों सेम दिखे, कोई डाउट लग रहा है, तो यहाँ TR डैश T1R ऐसा कुछ भी लिख सकते हो। तो हियर इट इज 6 प्लस आर माइनस वन इंटू 3, क्योंकि उसी फॉर्मूले पर है A प्लस आर माइनस वन इंटू डी। तो 6 प्लस आर माइनस वन इंटू 3, जस्ट ओपन द ब्रैकेट, वी गेट 6 प्लस 3r माइनस 3, और उनको सिंप्लीफाई कर लिया, सो वी गेट 3r प्लस 3। तो अब हमारे पास यहाँ पर टू टर्म्स मौजूद हैं, टू टर्म्स अवेलेबल हैं, उनको हमें क्लियर कर लेना चाहिए कि फर्स्ट TR क्या है, फर्स्ट सीक्वेंस के लिए 2r और सेकंड सीक्वेंस के लिए TR का वैल्यू है 3r प्लस 3। लेकिन अगर सीक्वेंस यहाँ मल्टीप्लिकेशन के फॉर्म में है, तो इनके जो लास्ट टर्म हमें यहाँ मिलेंगे TR मीन्स rth टर्म्स, वो भी मल्टीप्लिकेशन के फॉर्म में हो जाएंगे। तो 2r इंटू 3r प्लस 3, और अब हम लोग ये पूरे सीक्वेंस को समेशन के फॉर्म में समेट लेंगे, समेशन के फॉर्म में लिख लेंगे। तो आइए, देयरफॉर 2 इंटू 6 प्लस 4 इंटू 9 प्लस 6 इंटू 12 plus and so on up to n terms can be written as summation r equal to 1 to n 2r into 3r plus 3। तो ये 2r क्या है, फर्स्ट टर्म का rth टर्म, और ये 3r plus 3 क्या है, सेकंड सीक्वेंस का rth टर्म। तो फर्स्ट सीक्वेंस का rth ये है और सेकंड सीक्वेंस का rth ये है। तो दोनों को हमने यहाँ पर कर दिया मल्टीप्लाई। तो अब हमें अगर किसी भी स्टूडेंट को कोई डाउट है कि इस कैसे पॉसिबल होगा, तो r इक्वल टू 1 पुट करके देखोगे, ये हमें 2 इंटू 6 देगा। देखो r इक्वल टू 1 आई चेक करके भी दिखा देता हूँ। r इक्वल टू 1, हियर 2 इंटू 1 इंटू, तो 2 इंटू 1 क्या हो गया 2, और यहाँ पर 3 इंटू 1 प्लस 3 दैट इज 6, तो 2 इंटू 6 ये हमें फर्स्ट टर्म मिल गया। ऐसे ही r इक्वल टू 2 पुट करोगे तो 2 इंटू 2 दैट इज 4, और यहाँ 3 इंटू 2 6 प्लस 3 दैट इज 9।
तो हमें मिलता है 4 × 9। ऐसे ही हमें सभी टर्म्स यहाँ मिलते जाएंगे, तो इसलिए rth टर्म हमारा करेक्ट है कि नहीं ये भी चेक कर सकते हो। मतलब जो हम rth टर्म यहाँ लिखेंगे उसमें वैल्यू ऑफ r सब्स्टिट्यूट करने के बाद हमें सभी टर्म्स मिलने चाहिए, 1 by 1 यहाँ पर हमें सभी टर्म्स मिलने चाहिए। So it is equal to summation r equal to 1 to n 2r into 3r plus 3. Now we should multiply these two terms. तो देखो बहुत ही सिंपल मल्टीप्लिकेशन है, इनको मल्टीप्लाई कर लेते हैं। 2r into 3r becomes 6r square plus 2r into 3 becomes 6r. तो it is equal to summation r equal to 1 to n 6r square plus 6r. Now it can be written as 6 multiplied by summation r equal to 1 to n r square plus 6 multiplied by summation r equal to 1 to n r. Now it is equal to 6 as it is here. Value of summation r square means sum of square of first n natural numbers n into n plus 1 into 2n plus 1 upon 6. ये रहा फॉर्मूला इसका, और प्लस 6 इंटू समेशन आर, तो 6 एज इट इज, समेशन आर की वैल्यू होती है n इंटू एन प्लस 1 अपॉन 2। दिस इज द फॉर्मूला। अब हम क्या करेंगे अगले स्टेप में, 6 गोइंग बाय 6 ये कैंसिल हो गया, और यहाँ 2 3 जा 6, तो ये भी कैंसिल हो गया, यहाँ पर 3 आ जाएगा। तो आइए इसको अगले स्टेप में हम लोग यहाँ पर नोट डाउन कर लेते हैं। तो हियर इट इज, देखो 6 and 6 गेट कैंसल्ड, रिमेनिंग टर्म्स विल बी n इंटू एन प्लस 1 इंटू 2n plus 1, and here 2 3 जा 6, so this will be 3n into n plus 1. Now you can see n into n plus 1, देखो n into n plus 1 and n into n plus 1 common in these two terms. तो n into n plus 1 common into 2n plus 1 और यहाँ से plus 3, ये दोनों एक ब्रैकेट में आ गए। तो 2n plus 1 plus 3 here in the third term, तो यहाँ पर n into n plus 1 into 2n plus 1 plus 3। अभी 2n plus 1 plus 3 becomes what, देखो 2n plus 4, तो ये हो गया इट इज इक्वल टू n into n plus 1 into 2n plus 4। क्लियर? तो ये टर्म आने के बाद अब हम लोग क्या करेंगे, इसको देखते हैं। ये लास्ट ब्रैकेट में 2 है कॉमन, तो इसको 2 हमने कॉमन किया और सबसे पहले लिख दिया। तो इट इज इक्वल टू 2 इंटू n प्लस 1 इंटू n प्लस 2। देखो 2 कॉमन करने के बाद यहाँ पर सिर्फ n प्लस 2 रह जाएगा। तो इट इज इक्वल टू 2 इंटू n प्लस 1 इंटू n प्लस 2। दिस इज द करेक्ट आंसर एंड फाइनल आंसर फॉर क्वेश्चन नंबर 14th। नाउ सी क्वेश्चन नंबर 15th। फाइंड 2 इंटू 5 इंटू 8 प्लस 4 into 7 into 10 plus 6 into 9 into 12 plus and so on up to n terms। ये हमारा क्वेश्चन है। तो ये क्या है, सम ऑफ द प्रोडक्ट ऑफ 3 टर्म्स। तो यहाँ पर हमारे जो सीक्वेंस दी गई है उसमें फर्स्ट टर्म में 3 नंबर का प्रोडक्ट है, सेकंड में भी 3 है और थर्ड में भी 3 है एंड सो ऑन। इस तरह से हमें यहाँ सीक्वेंसेस मिलेंगे। तो जैसा कि मैंने बताया कि अगर हम लोग इनको मल्टीप्लाई करते हैं, एपी जीपी के लिए चेक करते हैं, तो यहाँ पर हमें कुछ भी कंफर्मेशन होने वाली नहीं है। तो हमें जैसा ही क्वेश्चन दिया है वैसा ही सोल्यूशन में नोट कर लेना चाहिए। तो ये सीक्वेंस हमारे पास अवेलेबल है। तो चलिए हम इसका सोल्यूशन स्टार्ट करते हैं कि फर्स्ट नंबर इन ईच प्रोडक्ट। तो सबसे पहले फर्स्ट नंबर इन ईच प्रोडक्ट ढूंढते हैं, और ढूंढने की भी कोई क्या जरूरत है, यहाँ पर क्लियरली देख सकते हो फर्स्ट नंबर इज 2 हियर इट इज 4, इट इज 6 एंड सो ऑन। तो फर्स्ट नंबर इन ईच प्रोडक्ट इज 2 4 6 एंड सो ऑन आर इन एन एपी। तो ये भी एपी में है विथ फर्स्ट टर्म a इक्वल टू 2 एंड कॉमन डिफरेंस d इक्वल टू 4 माइनस 2 दैट इज 2। क्लियर? तो अब हमें यहाँ पर सबसे पहले क्या करना है, सबसे पहले हमें यहाँ पर टर्म्स ढूंढने हैं। कौन से टर्म्स ढूंढने हैं, rth। तो सिंस टी आर इक्वल टू ए प्लस आर माइनस 1 इंटू डी, ये फॉर्मूला लिख लेना है। तो टी आर इक्वल टू ए प्लस आर माइनस 1 इंटू डी, जैसा कि मैंने प्रीवियस क्वेश्चन में भी एक्सप्लेन किया कि यहाँ पर आर का रिलेशन जीपी से नहीं है, दिस इज rth टर्म, एक टर्म केवल कंसिडर किया गया। अगर कोई भी स्टूडेंट को कुछ डाउट्स है, यहाँ पर अदर देन एन कोई भी अल्फाबेट यूज कर सकते हो, बट वो फार्मूला एपी के लिए टी एन का ही फार्मूला होना चाहिए, या यहाँ पर टी लैम्डा भी यूज कर सकते हो, टी लैम्डा इक्वल टू ए प्लस लैम्डा माइनस 1 इंटू डी।
तो भी चलेगा। तो यहाँ पर आइए आगे चलते हैं अभी। तो वैल्यू ऑफ ए इज 2 प्लस आर माइनस 1 इंटू 2, क्योंकि डिफरेंस भी यहाँ पर 2 है। तो ओपन द ब्रैकेट 2r माइनस 2, तो हो जाएगा 2 प्लस 2r माइनस 2, तो 2 एंड माइनस 2 विल बी कैंसल्ड, वी गेट हियर 2r ओनली, तो ये हमें मिल गया tr इक्वल टू 2r। तो rth टर्म फॉर द फर्स्ट सीक्वेंस इज 2r। Now, second number in each term, second number in each product is what? तो second number in each product, अब आइए देखते हैं यहाँ पर second number है हमारे पास 5, 7, 9 and so on. तो we should write here 5, 7, 9 and so on are in an AP with A equal to 5. अब यहाँ second sequence के लिए first term A क्या है 5 and common difference 7 minus 5 that is 2. तो चलो कॉमन डिफरेंस यहाँ पर 2 है और फर्स्ट टर्म a इक्वल टू है 5। नाउ टी आर फॉर द सेकंड सीक्वेंस, तो टी आर इक्वल टू 5 प्लस आर माइनस 1 इंटू 2, जस्ट ओपन द ब्रैकेट हियर 2r माइनस 2, तो 5 प्लस 2r माइनस 2 बिकम्स 2r प्लस 3। क्लियर। अब इसके बाद हमारा आता है यहाँ पर थर्ड नंबर इन ईच प्रोडक्ट, क्योंकि इसमें थ्री नंबर्स का मल्टीप्लिकेशन शो किया गया, तो हम लोग यहाँ पर थर्ड नंबर इन ईच प्रोडक्ट आगे चलेंगे। हियर 8, 10, 12 एंड सो ऑन आर इन एन एपी, क्योंकि देखो थर्ड नंबर यहाँ 8, 10, 12 एंड सो ऑन, तो ये हम यहाँ पर लिखना है कि 8, 10, 12, एंड सो ऑन आर इन एन एपी विथ a equal to 8 means first term a equal to 8 and common difference d equal to 10 minus 8 that is 2। ये हमारे पास common difference आ गया। Now using TR formula again, since therefore TR equal to a that is 8 plus r minus 1 into d that is 2, तो 8 plus r minus 1 into 2 becomes, अब इसको ब्रैकेट यहाँ भी ओपन करेंगे तो 2r minus 2, तो इट इज इक्वल टू 2r plus 6। तो हमारे पास 3 सीक्वेंसेस के 3 rth टर्म मिल गए। अब ये तीनों rth टर्म देखो, अगर यहाँ पर नंबर्स मल्टीप्लिकेशन के फॉर्म में है तो हमारे जो ये तीनों rth टर्म आए, फर्स्ट वन है 2r, सेकंड है 2r प्लस 3 और थर्ड है 2r प्लस 6, ये तीनों मल्टीप्लिकेशन के फॉर्म में हो जाएंगे यहाँ पर। ठीक है, लेकिन उससे पहले एक एक्सप्लेनेशन और देना चाहता हूं, वो भी चेक कर लो। वी सी दैट हियर फर्स्ट नंबर इज 2, सेकंड इज 5, थर्ड इज 8। तो इन नंबर में हमारे पास देखो 3 का डिफरेंस है, 2 के बाद क्या आता है 5, तो यहाँ पर प्लस 3 ऐड हुआ है और फिर 5 प्लस 3 करके 8 आया, जो कि तीनों नंबर यहाँ मल्टीप्लाई करके दिए गए 2 इंटू 5 इंटू 8। तो अगर हमारे पास मान लो कि टाइम कम है, एग्जाम में बहुत कम टाइम बचा और इक्वेशन हमें कंप्लीट करना ही है, तो उसके लिए जैसे हमने एक फर्स्ट सीक्वेंस के लिए टी आर फाइंड कर लिया, 2r आ गया, तो अगला अगर टाइम नहीं है तो हम लोग लिख सकते हैं सिमिलरली सेकंड एंड थर्ड टी आर के लिए हम लोग यहाँ पर यूज कर सकते हैं कि सिमिलरली वी कैन गेट अदर टी आर टर्म्स, अदर rth टर्म्स। 2r देखो 2r तो आ ही चुका है, तो इसमें अगर 3 का प्लस 3 ऐड किया गया, 2 प्लस 3 5 आता है, यहाँ भी 2r प्लस 3 हो गया, देख लो। तो इसमें प्लस 3 कर दोगे तो ये 2r के बाद 2r प्लस 3 और फिर से प्लस 3, देखो अगले में 5 प्लस 3 करके 8 आया, तो इनके टीआर टर्म में भी सेम प्रोसेस होती है। तो 2r प्लस 3 एक बार और इसमें प्लस 3 कर दो तो प्लस 6 हो जाएगा, ये थर्ड के लिए हो गया 2r प्लस 6। तो अगर टाइम कम है तो हमें ये सब सेंटेंस इतना लिखने की जरूरत नहीं होगी, डायरेक्टली यू कैन से tr इक्वल टू 2r, देन फॉर द सेकंड नंबर इन ईच प्रोडक्ट tr इक्वल टू 2r प्लस 3 एंड थर्ड नंबर इन ईच 2r प्लस 6। तो यहाँ पर भी देख सकते हो क्लियरली 2r प्लस 3, 2r प्लस 6, तो यहाँ भी 3 का ही डिफरेंस है। ओके, तो ये चीज यहाँ पर एक्सप्लेन करनी थी। अब इसके बाद हमें क्या करना है, आइए आगे सिखाता हूँ। देयरफॉर 2 इंटू 5 इंटू 8 प्लस 4 इंटू 7 इंटू 10 प्लस 6 इंटू 9 इंटू 12 प्लस एंड सो ऑन अप टू n टर्म्स। तो यहाँ पर हमें लिख लेना है। तो ये जो सीक्वेंस अब यहाँ प्रोडक्ट के फॉर्म में था, sum of the product of 3 numbers, it can be written in the summation form as r equal to 1 to n 2r into 2r plus 3 into 2r plus 6 means product of all the 3 rth terms। ये तीनों का प्रोडक्ट यहाँ पर हमें यूज करना है और समेशन की जो लिमिट रखनी है r equal to 1 to n।
इसको हम लोग लिमिट बोलें तो ज़्यादा बेटर है। समेशन r इक्वल टू 1 टू n 2r इंटू 2r प्लस 3 इंटू 2r प्लस 6। तो ये टर्म्स हमें यहाँ पर मिल गए। अब इसके बाद क्या करना है, अब इन तीनों को हमें मल्टीप्लाई कर लेना है। तो इट इज इक्वल टू समेशन r इक्वल टू 1 टू n 2r as it is, multiplying these two brackets first. So we get here 2r into 2r, that is 4r square, plus 2r into 6, 12r, plus 3 into 2r, plus 6r, and plus 3 into 6 becomes 18. ये दोनों ब्रैकेट को मल्टीप्लाई करके आ गया। तो इनका जो सिंपलेस्ट फॉर्म होगा वो 4r स्क्वायर प्लस 18r प्लस 18 हो जाएगा। और अभी जो 2r है यहाँ पर रिमेनिंग टर्म्स, वी शुड मल्टीप्लाई दिस in the bracket again and write the simplest form here. So it is equal to r equal to 1 to n. अब देखो 2r into 4r square becomes 8r cube और ये 12r plus 6r 18r हो चुका है। 18r into 2r becomes 36r square और plus 18 into 2r that is 36r। तो ये मिल गया हमें समेशन r equal to 1 to n 8r cube plus 36r square plus 36r। ये हमें तीनों ही टर्म यहाँ पर क्लियरली मिल गए, जो कि बहुत ही अच्छे टर्म्स हैं। अब इसके बाद हमें तीनों टर्म में समेशन यूज करते हैं और उनको सेपरेट करके लिख लेते हैं। सो इट इज इक्वल टू r इक्वल टू n समेशन r इक्वल टू 1 टू n 8r क्यूब प्लस समेशन r इक्वल टू 1 टू n 36r स्क्वायर प्लस समेशन r इक्वल टू 1 टू n 36r। हमने यहाँ से क्या यहाँ पर किया, जस्ट सेपरेट ईच टर्म विथ सिग्मा नोटेशन। Now using the formula for summation r cube, summation r square plus summation r। और अगर किसी स्टूडेंट को फॉर्मूला नहीं मालूम है, इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन में एंड में जाकर के देखिए, मैंने एक लिंक प्रोवाइड किया है। उस लिंक पर टच करोगे यू विल गेट फार्मूला लिस्ट, तुरंत फार्मूला लिस्ट पर पहुंच जाओगे। वहां से फार्मूला रिवाइज कर सकते हो, पूरे पेज को अच्छे से ऑब्जर्व करो, उसमें फार्मूला मिलेगा। तो आगे चलते हैं। अब इसमें हमें जो क्लियर करना था, सबसे पहले देखो समेशन r इक्वल टू 1 टू n 8r क्यूब। तो 8 है क्या यहाँ पर कांस्टेंट 8, तो टेकन आउट 8 हो गया बाहर। नाउ समेशन r क्यूब की मीनिंग होती है सम ऑफ क्यूब ऑफ फर्स्ट n नेचुरल नंबर्स, क्योंकि इसकी जो वैल्यू है r की, r इक्वल टू 1 टू n, तो इसके लिए हम यहाँ लोग इसको बोलेंगे कि सम ऑफ क्यूब ऑफ फर्स्ट n नेचुरल नंबर्स। और ये फॉर्मूला होता है n स्क्वायर इंटू n प्लस 1 स्क्वायर अपॉन 4। तो ये हो गया अपना फर्स्ट टर्म 8 मल्टीप्लाइड बाई स्क्वायर ऑफ n इंटू स्क्वायर ऑफ n प्लस 1 अपॉन 4। प्लस अब आते हैं सेकंड नोटेशन, सेकंड समेशन में। यहां पर है 36r स्क्वायर। तो हियर 36 इज कांस्टेंट टेकन आउट। Summation r equal to 1 to n r square means sum of square of first n natural numbers. So it is equal to 36 into n plus 1 into 2n plus 1 upon 6. देखो 36 ये पहले से कांस्टेंट है, 36 as it is. Summation r square is n into n plus 1 into 2n plus 1 upon 6. प्लस लास्ट टर्म के लिए समेशन r इक्वल टू 1 टू n 36r। Here 36 is constant taken out. Summation r means sum of the first n natural numbers, n into n plus 1 upon 2। ये हमारे पास तीनों फॉर्मूले इजिली यहां पर आ गए। अब इसके बाद सबसे पहले इनको हम लोग अगर डिवाइड होते हैं नंबर्स तो डिवाइड कर लेते हैं। देखो ये 8 अपॉन 4 दैट इज 2, 36 अपॉन 6 becomes 6 एंड 36 अपॉन 2 becomes 18। ये हमारे तीनों ही नंबर यहाँ डिवाइड हो गए, मीन्स अब डिनोमिनेटर में कोई भी नंबर रिमेनिंग नहीं रह जाएगा फॉर द नेक्स्ट स्टेप। नाउ अब क्या करते हैं, देखो यहाँ 2 आया है, तो दिस इज 2n स्क्वायर इंटू स्क्वायर ऑफ n प्लस 1, ये हो गया। प्लस यहाँ 6 आ गया, तो 6 इंटू n प्लस 1 इंटू 2n प्लस 1, और यहाँ पर आया 18, तो 18n इंटू n प्लस 1। तो इस अगले स्टेप में मैंने सिर्फ इन नंबर्स को जो डिवाइड करने के बाद नंबर्स आए हैं वो नंबर्स को यहाँ पर 2, यहाँ पर 6 और यहाँ पर 18 ये नंबर्स को एंट्री किया और बाकी सेम लिखा गया। अब इसके बाद होल स्टेप को ऑब्जर्व करना है। ऑब्जर्विंग होल स्टेप वी गेट, देखो 2 कॉमन है सभी टर्म में, 2 इंटू 3 कर देंगे 2 बाहर आ जाएगा, यहाँ 2 इंटू 9 हो जाएगा। और फिर दूसरा टर्म है n इंटू एन दैट इज n भी कॉमन है, और तो सभी में n है वो भी ठीक है।
n+1 वन टाइम, यहाँ पर n+1 होल स्क्वायर है तो वन टाइम कॉमन हो सकता है, यहाँ भी वन टाइम है, यहाँ भी वन टाइम है। तो इसका मीनिंग हो गया वी शुड टेक कॉमन 2 into n+1 फॉर all the three terms. So from all the three terms, taking 2 into n+1 common, we get remaining term from the first n into n+1 plus 3 into 2n+1 from the second, क्योंकि देखो ये 2 into 3 हो जाएगा तो 2n+1 common, only 3 into 2n+1 is the remaining। और यहाँ पर 2 into 9 लिखोगे तो 2 into n+1 कॉमन, ओनली 9 इज द रिमेनिंग। तो ये टर्म्स यहाँ पर रिमेनिंग है, इनको हमने एक रेक्टेंगुलर ब्रैकेट में नोट कर लिया। सो इट इज इक्वल टू 2 into n+1 into n+1 plus 3 into 2n+1 plus 9। अब क्या करना है यहाँ पर, इट इज इक्वल टू 2 into n+1, हियर n into n+1 n square plus n plus 3 into 2n+1 6n plus 3 प्लस 9। अब इसके बाद इट इज इक्वल टू 2n+1 इंटू n स्क्वायर, और ये n+6n 7n और 3 + 9 दैट इज 12। तो हो गया n स्क्वायर प्लस 7n प्लस 12। तो वी गेट हियर 2 into n+1 इंटू n स्क्वायर प्लस 7n प्लस 12। तो यहां तक तो हमारा ये फैक्टराइजेशन कंप्लीट हो जाता है, लेकिन लास्ट ब्रैकेट को हम लोग अगर सीरियसली ऑब्जर्व करें तो इट कैन बी फैक्टराइज्ड फर्दर। लास्ट ब्रैकेट मींस n स्क्वायर प्लस 7n प्लस 12 कैन बी फैक्टराइज्ड अगेन। तो स्प्लिटिंग द मिडल टर्म, हियर फैक्टराइज 12 whose sum is 7n, तो यहाँ पर हमारे पास 4 into 3 दो फैक्टर्स हो जाएंगे और 4n प्लस 3n बिकम्स 7n। तो हम लोग यहाँ पर लिखते हैं इट इज इक्वल टू 2n इंटू n+1 इंटू n स्क्वायर प्लस 4n प्लस 3n प्लस 12। इसको भी फैक्टराइज कर लिया यहाँ पर। तो इन द फर्स्ट टू टर्म हियर n कॉमन, तो n कॉमन n इंटू n प्लस 4 प्लस लास्ट टू टर्म में यहाँ पर कॉमन है प्लस 3, तो 3 कॉमन किया तो यहाँ पर आ गया n प्लस 4। सो इट इज इक्वल टू 2 इंटू n प्लस 1 इंटू n प्लस 4 प्लस 3 कॉमन n प्लस 4। नाउ it can be written as 2 into n plus 1 and then n plus 3 into n plus 4। तो ये हमारे अब यहाँ पर देखो अगर हम लोग ऐसे टर्म्स काउंट करेंगे तो 1 2 3 4 5 टर्म्स हो गए। मतलब यहाँ पर 2 into n plus 1 into n plus 3 into n plus 4। तो ये n स्क्वायर प्लस 7n प्लस 12 इसका जो फैक्टराइजेशन है ये है n plus 3 into n plus 4। हाँ, यहाँ पर कोई भी स्टूडेंट किसी भी ऑर्डर में इनको लिख सकते हैं, ऐसा ऑर्डर का कोई बाउंडेशन नहीं होता आंसर लिखने के लिए। तो यहाँ पर कोई भी स्टूडेंट चाहे तो किसी भी ब्रैकेट को, किसी भी टर्म को सबसे पहले लिख सकते हैं। अगर कोई इंटरेस्टेड है तो यहाँ पर 1 + n 3 + n 4 + n भी लिख सकते हैं, और 2 को चाहे तो इंटू 2 लास्ट में करो, चाहे इंटू n लास्ट में करो, कैसा भी लिख सकते हो, यू आर ऑलवेज राइट। तो हमें यही सब टर्म पर फोकस करना था और इसी सब टर्म को समझते हुए ये आज के 3 क्वेश्चंस कंप्लीट कर लिए। और ये तीनों ही क्वेश्चन हमारे समेशन या सिग्मा नोटेशन पर बेस्ड हैं, जो कि कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स और कॉलेज एग्जाम या बोर्ड एग्जाम के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट है। तो फॉर क्वेश्चन नंबर 15 इट्स ट्रू एंड फाइनल आंसर 2 into n plus 1 into n plus 3 into n plus 4 ये रहा। और ऑर्डर का कोई प्रॉब्लम नहीं, किसी भी ऑर्डर में लिख सकते हो इनको अपने आंसर को। ठीक है, तो डियर स्टूडेंट आज के लेक्चर में हम लोग ये क्वेश्चन तक टिल क्वेश्चन नंबर 15 तक अपना लेक्चर क्लोज करते हैं। और रिमेनिंग क्वेश्चंस के लिए, रिमेनिंग चैप्टर्स के लिए, रिमेनिंग एक्सरसाइजेस के लिए मिलते हैं कमिंग वीडियोस में या नेक्स्ट लेक्चर में। और इसके बाद अभी कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स के भी क्वेश्चंस अपलोड होते रहेंगे। तो क्योंकि अब कॉम्पिटिटिव एग्जाम का समय नज़दीक आ रहा है, तो अपने जेईई सीईटी का जो भी प्रिपरेशन चालू है वो भी इस चैनल पर मिल जाएगा। तो राजेंद्राज टीचिंग चैनल देखते रहिए, सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकॉन ऑन करके रखिए, और चैनल का लिंक अपने फ्रेंड्स को भी शेयर कर दीजिए, जिससे किसी भी स्टूडेंट को कोई प्रॉब्लम न हो और उनको राइट सोल्यूशन प्रोवाइड हो जाएगा, मिलता रहेगा। तो इसी टाइप के क्वेश्चंस को पढ़ने के लिए, प्रैक्टिस करने के लिए देखते रहिए हमारे कमिंग वीडियोस। थैंक यू सो मच।